ਦੇ ਤਾਰਕ ਨਾਮ ਦੇ ਜਹਾਜ਼ ਸਰਬ ਜੀਵਾਂ ਲਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਸਰਬ ਸਾਂਝੇ ਗੁਰੂਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਸੁਖਦਾਈ ਹਜ਼ੂਰੀ ਵਿੱਚ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਗੁਰਸਿੱਖੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼੍ਰੀ ਹਜ਼ੂਰ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦਿਵਸ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸਜਾਏ ਇਸ ਦੀਵਾਨ ਅੰਦਰ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਆਗਮਨ ਦੀ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਲਾਸਾਨੀ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਾਦਰੀ ਦੇ ਕੌਤਕ, ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਇਤਨੀ ਛੋਟੀ ਆਯੂ ਵਿੱਚ ਦ੍ਰਿੜਤਾ ਸਹਿਤ ਕੁਰਬਾਨੀ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਜੀ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਰਦੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਦਾ ਉਹ ਲਹੂ ਭਿੰਨਾ, ਲਹੂ ਭਿੱਜਿਆ ਅਧਿਆਇ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਵੀ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਲਾਈਫ ਹੈ ਸਿੱਖੀ ਦੀ। ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦਾ ਦੀਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਚਿਣੇ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ 'ਤੇ ਅਡੋਲ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਉਹ ਕਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਸਿੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਵਿੱਚ ਪਰਿਪੱਕ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਥਾਵਾਂ ਮੁੱਕ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਫੁੱਲਿਤ ਰੱਖਣਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਗੁਰਤੇਜ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਥੱਕ ਸੇਵਾ ਪੰਥੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨ ਦੀ ਵਿਉਂਤ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਮਸਲਾ इतना गंभीर है कि जे इस ਵੱਲ समय सिर ध्यान नहीं देंगे तो बहुत ਵੱਡੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ सिख पंथ के सामने आ जाएंगियां। मैं पहली बेनती कर देवां, किसी गुरसिख नाल कोई विरोध नहीं है, सिखी तो एक होनी चाहिए है। इक्का बाणी, एक गुर, इक्को शब्द विचार का फार्मूला, एक पंथ होवे। इसलिए किसी नाल विरोध नहीं है, क्योंकि जेड़े असी
ਬਾਣੀਆਂ ਤੇ ਰਹਿਤ ਮਰਿਆਦਾ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਕਿੰਤੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇ ਮਸਲੇ ਖੜੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਗੇ ਟੂਲ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਸ਼੍ਰੀ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਤੱਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ, ਭਗਤ ਬਾਣੀ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਰਾਗਮਾਲਾ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ, ਭੱਟਾ ਦੇ ਸਵਈਆਂ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਲੋਕ ਟੋਟਲੀ ਰਿਜੈਕਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਬਲਕਿ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਮੀਣਿਆਂ ਦੇ ਏਜੰਟ ਸਨ। ਉਹ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਵਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਤਨਾ ਅਨਮੋਲ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਾਣੀ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਵਿਆਖਿਆਕਾਰੀ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਿਵੇਂ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਕੀ ਨੇ, ਗੁਰਸਿੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਲਾਈਫ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਐਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕਿ ਰਤਾ ਭਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੇਅਦਬੀ ਵਾਲਾ ਹੋਏ, ਮੀਣੇ ਦਾ ਏਜੰਟ ਕਹਿਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੁਨਾਹ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਮਸਲਾ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ 2 ਘਟਨਾਵਾਂ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂ। ਇੱਕ ਗੁਰਸਿੱਖ ਭਰਾ ਮਿਲੇ, ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਲਿਖਦੇ ਹਨ ਵਿਰੁੱਧ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਬੀੜ ਮੈਂ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਕੋਲਬਰੁਕ ਵਾਲੀ ਬੀੜ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਦੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਵਾਲਾ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੂ ਬਹੂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਬੀੜ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਇਹ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਤੇ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਤਰਤੀਬ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੇ ਮੰਨੋ ਇਹਦੇ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਨਾ ਗਲਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮੰਨ ਲਿਆ, ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ, ਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਸਲਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰਨ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬਾਣੀਆਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਅਥੈਂਟਿਸਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਹੀ ਸਿੱਧਾ ਨਾ ਦੇਣ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹ 5-7 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ ਟਾਲਦੇ ਹੀ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਪੋਰਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮਸਲਾ ਤੇ ਬਾਣੀਆਂ ਗੁਰੂ ਦੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਇਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਾਠ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰ ਲਈਏ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਵੇਸਟ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਰੱਖਣੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁੱਧ ਕਰੀਏ ਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੱਢੀਏ। ਉਹ ਸਭ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰੀਏ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਤੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਨਿਰਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋ, ਨਿਰਪੱਖ ਹੋ ਕੇ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਬੋਲ ਪਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦਸਮ ਗ੍ਰੰਥ 'ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਛਿਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮਗਰੋਂ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, 20 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹੀਏ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਜਪਜੀ ਤੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਹੁਣ 12 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਛੱਡ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
मैं क्या जी ये कृपान क्यों पहनी हुई जे? फिर अमृत छकिया तुसी ककार धारण किए ने, जाप साहब का अमृत छकिया है, तो एक कृपान तो ही पा रखी है। कहने लगे जी ये तो गुरु हरगोबिंद साहब वाली कृपान है। गुरु गोबिंद सिंह उत्ते पूरा विश्वास ही खत्म हो गया। कहते ये तो गुरु हरगोबिंद साहब वाली है। मैं क्या जी उन्होंने दो पाइया हुई सन, दो पहनो। मैं क्या तुसी हुण अगली गल ये कहोगे कि 7वीं 8वीं 9वीं पातशाही की बाहर कृपान नहीं दिसती, इस करके मैं उतार दी है। फिर मैं उन्होंने कहा, मैं क्या चलो जे जाप साहब आप हटा दईए तो अमृत संचार वेले फिर ये जगह तो किहड़ी बाणी होर लियांदी जाए। कहन लगे जी जफरनामा लै। मैं क्या जी अमृत छकाण वेले वो बाणियां पढ़ियां जांदियां ने जिन्हां विच रब दे नाम की महिमा है, जिन्हां विच नाम अमृत है। जफरनामे विच ते औरंगजेब नूं भला बुरा भी किया है, तो वो बाणी जिहदे विच किसी नूं भला बुरा भी किया होवे वो अमृत संचार विच किवें शामिल करिए? कहंदे जरूरी जफरनामा सारा शामिल करना है, जिन्ना को काम दा उन्ना कर लैने आ। मैं कहा ठीक है तुसी अमृत ही अपना बना लो घर दा, गुरु साहब दा अमृत। हुण इहो जी विचार लैके असीं कित्थे पहुँचांगे? ये तो सानूं सोचना पैगा ना। किसी भरा नाल कोई विरोध नहीं है। ਜਿਹੜੇ विरुद्ध भी बोल रहे हैं वो भी किसी अज्ञान चो बोल रहे हैं, इस करके उन्होंने वो भी अपने भरा ने, कोई उन्होंने विरोध नहीं है, कोई दिली विरोध कहिए वो नहीं है। विरोध सिर्फ विचार का है कि ये विचार सिक्खी नूं खेरू खेरू कर देंगे, टुकड़ियां च बन देंगे। छोटी जी असी कौम हाँ जिहदी शक्ति बेअंत है। मतलब तुहानूं इत्थे देख के इतने प्रफुल्लित, पाकिस्तान विच मुहाजिर गया 67 साल हो तो ज़्यादा टाइम हो गया, वो अजे मुहाजिर है, रेफ्यूजी है। तुहानूं इत्थे कोई रेफ्यूजी कह सकता है? जदों पाकिस्तान बनिया नहीं सी, उधरला पंजाब ये सारे हिंदुस्तान नूं अनाज दिंदा सी। हुण जिहड़ा उधरला पंजाब है पाकिस्तान की लोड़ ही पूरी नहीं कर सकता, परंतु इधरला पंजाब जिहड़ा बेआबाद सी, बहुता हिस्सा मालवे का खास करके सारे देश नूं भोजन दे रहा। ये गुरु जी की शक्ति है ना रखी सिखां च। गुरसिखां की भुख सब गई तिन पिछे होर खाए कनेरी, जिथे जान जिथे बैठ जान जाके। ये समर्था जी कौम की है। जे नितनेम के झगड़े शुरू हो गए, बाणियां के झगड़े शुरू हो गए, जात पात के झगड़े जड़े ने वो बड़ी वड्डी समस्या बनी हुई है। सिख शक्ति इकट्ठी किवें रहे, सब तो वड्डी प्रॉब्लम साडी ये है। सिखां दी एकता किवें रहे, यूनिटी किवें होवे। हुण को कहे गुरु ग्रंथ साहब विच अदला बदली कर दिओ तो यूनिटी हो ही नहीं सकती। ये किवें हो जाएगी? जिसनूं असीं परंपरा तो पढ़ते आ रहे हाँ, गुरु ग्रंथ जी मानियो प्रगट गुरु की दे, जो प्रभु को मिलबो चाहें खोज शब्द में ले। ये अदला बदली तो फिर प्रभु नाल तोड़न वाला, वाहगुरू नाल तोड़न वाला काम हो गया ना। वाहगुरू कित्थों मिलेगा जी? इनू ही ये अदला बदली करनी शुरू कर दी है। ये समस्यावां ने जिस करके ये गल करनी पैंदी है, किसी धड़े किसी ग्रुप का विरोध करना, ये बिल्कुल साडा मकसद नहीं है। ना डॉक्टर गुरतेज सिंह जी का, ना इत्थों के प्रबंधक साहिबान का, ना मेरा है। संगत नूं सिर्फ जानकारी देनी, ठीक जानकारी देनी कि असल स्थिति की है। श्री कलगीधर पातशाह महाराज जी दे एक स्वरूप तो असीं सारे ही बहुत चंगी तरह जानते हैं। सरबंस दानी वाला, तलवार दे तनी होने वाला, जबर ते जुल्म नू नाश करने वास्ते
शस्त्र चुकन की प्रेरणा देने वाले तो शस्त्र नूं लाइफ का पार्ट बनाने वाले गुरुदेव, इस रूप में असी उन्होंने बहुत चंगी तरह जानते हाँ तो बड़ा साडा प्यार है। उन्होंने असी चिट्टियां बाजां वाले, कलगियां वाले ये कह के संबोधन करते हाँ। ये ध्यान रखिए, असी श्री गुरु नानक देव साहब साडे विजन च बहुत उच्चे ने। उन्होंने असी कित्थे वेखते हैं? उन्होंने वेखते हैं ध्रुव ते पहुँचे ने, उस तो भी ऊपर चले गए ने, सचखंड में चले गए। उन्होंने असी ये मनते हैं कि वह धरती के मनुख वर्गे मनुख नहीं सन। उन्होंने उत्थे पहुँच सी जिथे कोई देवी देवता भी नहीं पहुँच सकता। ये साडे सत्कार है, ये उचाइयां ने जिन्हां ते असी साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह नूं देखते हैं। परंतु गुरु गोबिंद सिंह महाराज नूं असी अपनी लाइफ के बहुत नेड़े वेखते हैं। उसने आपे गुर चेला कर दिता ना, साडे विच आ वसिया, बिल्कुल साडे वर्गा हो गया कि जे सिख ने अमृत छकना है तो मैं भी छकना है, मैं तुहाडे भी छकना है, मैनू भी छकाओ अमृत। साडे जीवन के ऐन नाल खलोते। इस करके सानू उन्हां दियां जिहड़ियां वस्तां सन, उन्हां दा बाज, उन्हां दा नीला घोड़ा, उन्हां दी कलगी, इनू असी बहुत स्नेह करते हैं, प्यार करते हैं। एक होर चीज़ उन्हां कोल बहुत पावरफुल सी, जिस विचों ये सारी शस्त्र की क्रांति निकली है, वो सी उन्हां दी कलम। कलम वाल साडा बहुत ध्यान नहीं गया है। कदे जाते हैं पौंटा साहब तो उत्थे कलमां पईयां ने, दर्शन कर लईदे ने, इन्हां नाल रचनावां करते सन। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जिहड़ी साडी कायाकल्प की है, इहदे पिछे कलम है। श्री गुरु नानक देव जी ने बाबर नूं जाबर कह के दृढ़ता ते दिखा दी सी ना, बिल्कुल। पर पहला किहड़ी चीज़ उन्होंने पता सी, बंदे नूं बंदा किहड़ी चीज़ बनाएगी, उन्होंने पता सी कलम बनाएगी। बाणी लिखी, लिखवाई, बाणी एकत्र की, बाणी ना जोड़िया, बंदे नूं ये बदल सकती है। उन्होंने बंदा बदल दिता, गुरमुख बना दिता, सचियार पुरख बना दिता। सचियार पुरख नूं क्रांति विच किवें लियाउणा है, एक करामात साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कलम ने की थी। जितने वो तलवार दे धनी सन, उतने ही वो कलम दे धनी सन। साडा सारा लिटरेचर जिहड़ा है वो गुरु गोबिंद सिंह महाराज की कलम की क्रांति विचों निकलिया होया है। पहला असी लिटरेचर साडा होर तरह का सी, जन्म साखियां वर्गा सी, भाई गुरदास जी दियां 12 वर्गा सी, जिहदा मुख प्रयोजन सी बाणी दे सिद्धांत नूं प्रगट करना। गुरु गोबिंद सिंह महाराज की क्रांति विचों कौम का इतिहास लिखना, कौम के सूरबीरां की गाथा लिखनी, गुरमुख जीवन उन्होंने किवें संघर्ष में बतीत किया है, ये कथावां लिखनियां। ये श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह की कलम तो प्रेरित होकर निकलियां ने। ये साडे जिहड़े ग्रंथ ने, श्री गुरु सोभा, गुरबिलास सुखा सिंह दा, गुरबिलास कोयर सिंह दा, महिमा प्रकाश है, बंसावली नामा है, अगे चल के सूरज प्रकाश आता है, ज्ञानी ज्ञान सिंह दे पंथ प्रकाश आता है, फिर उन्हें तवारी गुरु खालसा उसे सरल पंजाबी च लिख दिता। ये सारिया रचनावां, ये साडे रहतनामे, ये लिखण की परंपरा कित्थों चली है? ये श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की कलम विचों निकलियां हुई चीज़ां ने। क्रांति का जन्म उत्थों है। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी ने एक क्रांति लियांदी। वो बंदा जिहड़ा अधम हो चुका सी, बिल्कुल डिग चुका सी, उसनूं उचाइयां ते खड़ा करके सचियार पुरख बना दिता।
वो बंदा जिहड़ा धार्मिक हुंदियां भी महा अधार्मिक सी। क्यों महा धार्मिक सी? बाणी च पढ़दे हिंदू अन्ना तुरकू काना दुहां ते ज्ञानी सियाणा। ये कोई किसी पंथ की निंदा थोड़ी है। हिंदू का पतन बिल्कुल हो गया है। हिंदू मूले भूले अखूटे जाही, नारद कया से पूज कराही। अंधे गूंगे, निंदा नहीं है, ये तो हिंदू भगतां दी बाणी है। क्या कि तू धर्म तो बिल्कुल ही थले गिर गया है, धर्म की समझ ही खत्म हो गई है। मुसलमान को क्या कि तू कहना इस करके है, समदृष्टि नहीं तेरे को, तेरे वास्ते सब कुछ इस्लाम में सिमट जाता है। इस करके तेरे को जेड़ी विशाल दृष्टि, जेड़ी एक नज़र चाहिए है समानता वाली, वो तेरे पास नहीं है। बंदा इस तरह अधर्मी हो चुका सी। बंदा बंदा नहीं सी रहा। तो गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह महाराज ने अपने 10 स्वरूपों दे विच बंदे नूं सचियार पुरख बना दिता। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी पढ़ के एक हिंदू भी सचियार पुरुष बन सकता है, क्योंकि इत्थे ये क्या ही नहीं जपजी विच सिख चंगा किवें बने, ये तो समस्या ही कोई नहीं। कुरान शरीफ की दूजी सूरत ते चले जाओ तुसीं, 7 आयतां पहलियां जिहड़ियां ने वो छड्ड दईए, दूजी सूरत ते जावांगे। मुसलमान चंगा किवें बन सकता है, उसकी शरीयत किहड़ी होवेगी, ये चीज़ां आईयां हैं। जे असी ओल्ड टैस्टामेंट पढ़ांगे तो जीव किवें चंगा बन सकता, यहूदी किवें चंगा होवे। न्यू टैस्टामेंट कहेगी ईसाई लाइफ की है। ये केवल गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ते गुरु ग्रंथ साहब महाराज ने जिहड़े कहंदे बंदा चंगा किवें बने, किव सचियारा होई है, किव कूड़े टुटे पाल। बंदा सच का धारनी किवें बने। श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी हिंदू पढ़ के सचियार बन सकता है, मुसलमान भी पढ़ के सचियार बन सकता है। ये पंथां की संकीर्णता तो मुक्त बाणी है। ये जिहड़ा साडा अपने अपने पंथ की सौड़ी सोच है, उस सौड़ी सोच नूं तोड़ दिंदी है बाणी है, विशाल सोच बन जाती है। जिथे वितकरे मजहबां दे, देशां दे, रेसेज दे, जातां दे सब खत्म हो जाते हैं, एक निरोल इंसान रह जाता है। वो जिहड़ा निरोल इंसान बनया है, उसनूं संसार विच निरोलता, निर्मलता, पवित्र जीवन बहाल करने वास्ते दसम ग्रंथ की बाणी एक पंथ विच एकत्र करने लई जरूरी है। वो एक पंथ का रूप दे देती है। जो संत बनया सी उसनूं सिपाही का रूप दे देती है। ये गल्लां जदों पहलां भी मैं कहीआं तो फिर एक चैलेंज होर उन्हां सामने रखिया भरावां ने। कहते श्री गुरु हरगोबिंद साहब ने संत सिपाही नहीं सी बनाया, परंतु असीं देखते हैं वो एक टैंपरेरी फेज है। शहादत का रिएक्शन होया है, लड़ाइयाँ हुई ने, उस तो बाद फिर शांति हो गई है। श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी ने फिर शांतमयी शहादत दी है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह ने यह विधान ही कर दिता कि सिख ने भेडां बकरियां वांग सिर नहीं कटाना। जुल्म का मुकाबला, मैनू एक गल याद आ गई। श्री गुरु जी दादू की समाध ते गए। दादू एक संत होए ने, दादू। उस वेले महंत जैत राम सी। गुरु जी ने बुलाया,
आओ साडी डेरे विच दर्शन दिओ। सतगुरु जी गए अपने सिंघां नाल। वो कहन लगा, उसने दादू दी एक पंक्ति दोहरा बोलिया, दादू समा विचारक है कली का राखै पाए। कलयुग कुछ डर डुर के चलना चाहिए। जे को मारा ईंट टीम बैठा मूड फिराए। कोई इट पत्थर मार भी जाता है तो की करना है। संत आदमी अपनी जिहड़ी वो शांति है वो ना गवाए, सिर झुका के टाइम कढ़ लवो। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उत्तर दिता, दादू समा विचारक है कलिका राखै पाए। जे को मारे ईंट टीम पत्थर हने रसाए। कहते जे कोई इट पत्थर इट मारे तो पत्थर ना जवाब दो। क्यों? क्योंकि श्री गुरु अर्जन देव महाराज ने अपने शरीर उत्ते इतने संकट झल्ले सन तो कोई पापियों का मन बदल गया सी। उन्होंने फिर श्री गुरु तेग बहादुर जी ने शहीद कर दिता। उन्होंने फिर किसी को आरे नाल चीरिया, किसी को रूई नाल साड़िया, किसी को देग विच उबाल दिता। कोई उन्होंने मन उत्ते असर पिया सी? कोई नहीं। जुल्म दे राज दा अंत उदों ही आया जदों छोटे छोटे साहिबजादियां में शस्त्र चक ले। जदों गुरु जी ने ये चैलेंज दे दिता कि मैं चिड़ियन से मैं बाज तुड़ाऊं तब है गोबिंद सिंह नाम कहा। जदों उन्हें कह दिता भी ये जो गिद्दड़ ने ना जिन्हों दे एक लाइन है वो इत्थों की प्रवृत्ति जी हिंदुस्तान की सी, काम हमारा तोले तकड़ी नंगी करद कदे नहीं पकड़ी। चिड़ी उड़े तो भी डर जाऊं। मैं तो चिड़ी उड़े तो डर जाना भी की हो गया। तुरकन स्यों कैसे लड़ पाऊं। ये जिहड़ी बुझदिली सी हिंदुस्तान की, इसनूं श्री गुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने तोड़ दिता। और उसनूं तोड़न वास्ते उन्होंने बंदे दा माइंड चेंज किया है। वो माइंड जेड़ा एक अकाल ते स्थित हो गया सी, बिल्कुल सहज समाधि में सिख जुड़ गया सी एक अकाल नाल। उस अकाल नूं फिर सर्वलोह बना दिता। लोह तो रब हुंदा है, लोह तो लोहा हुंदा है ना, आयरन। सर्वलोह बहुत ही प्योर लोहा। तो कह दिता कि परमेश्वरी सर्वलोह है। किस करके सर्वलोह हो गया? क्योंकि ये चिंतन में लियाना है कि सिख ऐसे परमात्मा की आराधना करता है जिसनों कोई दुश्मन मार नहीं सकता। तो वह नाम जपद्या जपद्या उसनों हिरदे में वसा के सिख जिहड़ा है वो ही सर्वलोह हो जाएगा। वह कोई कुछ बिगाड़ नहीं सकेगा, ना अग साड़ सकेगी, ना आरा चीर सकेगा, ना बंद बंद कट के उसनों मारिया जा सकता है, ना उसनों देग विच उबाल के मारिया जा सकता, ना चरखियां ते चाड़ के मारिया जा सकता। ये गुरु साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश है साढ़े उत्ते। श्री दसम ग्रंथ दियां बाणियां जिन्हां ने पढ़ियां ने, पहली गल मैं ये भी बेनती कर देवां, जदों सानूं पढ़ाया गया सी श्री दसम ग्रंथ पढ़िया नहीं सी ना, किताबां एक दो पढ़ियां तो पेपर देना सी। सानूं ये पढ़ाया गया इहदे विच ये नुक्सा है, इहदे विच ये नुक्सा है, इहदे विच ये नुक्सा है। साडा भी माइंड बदल दिता। पहला असीं यही कहते सन, हाँ ये तो गुरु जी किस तरह किवें कह सकते हैं गुरु जी, जिवें हुण असीं जिवें हुण आप जी जिहड़े जिन्हां नूं नहीं पता तो वो कह देंदे ने, असीं भी इस तरह साडा रिएक्शन इस तरह ही हुंदा सी। जदों श्री दसम ग्रंथ नूं आप पढ़िया, पैर पैर ते वेखिया कि इतने अनमोल विचार, तो फिर मन बदल गया। तो ये समझ आ गई कि बिना पढ़े लिखे बिना इसनूं समझे ही ये उत्ते किंतु कर रहे हैं।
श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह श्री हजूर दे दरबार विच 52 कवि सन। ते कवि अपनियां कवितावां विच कहंदे ने कि ਜਿਹੜੇ दान राजा भोज करदा सी ना, राजा भोज बड़ा दानी मन्निया जाता है, कहते वो कदे कदाए ਜਿਹੜਾ दान करदा सी ਇਹ ਤੇ ਤੁਸੀਂ रोज़ ही ਤੁਹਾਡੇ दरबार ਵਿੱਚ ਉਹ मौजां कवियां ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ने। 60,000 टका एक कविता का इनाम दे देना कोई छोटी मोटी गल थोड़ी है। क्यों? बाहरों कवि लियाते नाल सिख कवि बिठाए, सिख ज्ञानवान हो जाए, सिख नूं लिखना आ जाए। दमदमा साहब की जिहड़ी धरती है ये जिस किस्म के उजाड़ सन, इत्थे बिल्कुल ही अनपढ़ता सी, मालवे विच तां बहुत ही अनपढ़ता सी। और मालवे विचों भी जिहड़ा बठिंडे का एरिया है, ये तलवंडी साबो का एरिया है, ये बड़ा जहालत वाला इलाका मन्निया जाता सी। तो श्री गुरु जी ने कहा कि इत्थे जिथे जहालत है, जहालत तोड़ांगा, ये गुरु की काशी बनी। अज कितनियां इंस्टीट्यूशन जिहड़ियां विद्या दियां ने वो दमदमा साहब चल रही हैं। ये वो स्थान है जिहदे विचों टकसालां निकलियां, दमदमी टकसाल निकली जिन्हें इतना गुरबाणी का प्रचार प्रसार उन्हां लोकां विच कीता है जिहड़े 5 जमातां भी पास नहीं सन। एक क्रांति गुरु जी की देखो तो सही, महसूस से करिए कि जेड़ा बच्चा कदे स्कूल नहीं गया उसनों पकड़ के इतना प्रवीण कर देना कि वो वड्डे वड्डे इकट्ठा में गुरबाणी की व्याख्या करे, गुरबाणी की कथा करे, इतिहास की व्याख्या करे। ये एक करामात है श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह जी। फिर उन्होंने जदों अपने दरबार विच कवियां नूं बुलाया सी, पंडित जिहड़े सन किसी नूं संस्कृत सिखाउण वास्ते तैयार नहीं सन। उन्होंने कहा सिख संस्कृत सीखे, संस्कृत का ज्ञाता सिख होवे। उहदे वास्ते की कीता उन्होंने 5 सिख तोरे, काशी जाके पढ़ के आओ संस्कृत। पंडित कहन लगे कि ना, तुसी ते छोटी जात दे हो, शूद्र संस्कृत नहीं पढ़ सकते, असी तुहानू संस्कृत नहीं पढ़ावांगे। एक भैनों भराओ मैं बेनती कर देवां, जात का अभिमान नहीं करना। ये जिहड़ा असी बना लिया है ना, असी सोचते हैं भी जट हो गए वड्डे हो गए, आलू वालीए हो गए वड्डे हो गए ना। ब्राह्मण की जिहड़ी श्रेणी वंड सी उहदे विच सारे ही असी शूद्र सन, थोड़ा जिहा दर्जा वड्डा ते छोटा की। जिहड़े खत्तरी सन ब्राह्मण ने उन्होंने भी उन्हों का जिहड़ा रुतबा सी वो भी मिट्टी च मिला के उन्होंने वैश्य बना दिता, दुकानदार बना दिता। दुकानदारी तो वैश्यां का काम है, खत्तरियां का रुतबा भी छोटा कर दिता सी। साडी सरदारी, साडा सब कुछ ये श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश है। उन्होंने सानू छोटियां तो उच्चे चुकया सी, जे हुण जातां च जावांगे फिर छोटे हो जाएंगे। ये ना समझना कि एक तरखान छोटा हो जाएगा या आलू वालिया छोटा हो जाएगा ना। चाहे कोई खत्तरी सिख है, चाहे कोई ब्राह्मण सिख है, चाहे कोई जट सिख है, जदों वो जात पात में बढ़ेगा वो छोटा हो जाएगा, अपने गुरु नाल ही वड्डा है वो। क्योंकि उस गुरु के बराबर बंदे की जात पहुँच ही नहीं सकती, वो इन्ना उच्चा है। ਉਹਦੇ मुकाबले ते असी किसी पैगंबर नूं नहीं रख सकते, तो किसी जात नूं कित्थों रख लवांगे। साडियां उचाइयां केवल ते केवल अपने गुरु पातशाह नाल ने। ते मैं बेनती कर रहा सी, पंडितां ने कहा तुसीं शूद्र हो, तुहानूं संस्कृत नहीं पढ़ावांगे। गुरु जी को वापस आ गए। गुरु जी ने कहा विद्या तो लैनी है, साधुआं दा बाणा पा लो। साधु की जात पात पूछी नहीं जाती। साधुआं दा बाणा पहन के 5 सिख जिहड़े ने वो संस्कृत पढ़ के आए। तो फिर गुरु जी ने कहा तुसी निर्मले हो,
निर्मल का मतलब होता है पवित्र। ज्ञान नाल पवित्र होएगा बंदा। उन्होंने कहा ज्ञान नाल पवित्र हो गया, हुण लोकां नूं पवित्र करो। उन्होंने ਜਿਹੜੀਆਂ संस्कृत के विद्यालय शुरू किए, उन्होंने अज भी ब्राह्मण संस्कृत पढ़ना होंदा सिख तो। ये कोई छोटी मोटी बात है? ये कोई छोटी मोटी क्रांति है? सारा समाज दे विच बंदे दा स्टेटस ही बदल देना, सारे समाज नूं इस तरह जो बड़ा सी उहदी सारी वडियाई खत्म करके जो छोटे सन उन्होंने बड़े कर देना। ये कोई छोटी मोटी बात है? जिहड़ा उन्होंने कहा कि इन्हीं से राजे उपजाऊं, राज करन की नीत सिखाऊं, इन्हीं से सरदार बनाऊं, तबे गोविंद सिंह नाम कहाऊं। ये कोई कर नहीं सकिया पैगंबर। असां धर्म के विद्यार्थी होने करके सारा बाइबल भी थोड़ी बहुत पढ़ी है, कुरान शरीफ भी पढ़ी है, वेद भी थोड़े बहुत देखे ने, हिंदुस्तान की परंपरा भी देखी है तो बाहर की भी देखी है। किथे बेचारे कोई गुरु पातशाह के बराबर असीं किसी नूं रख सकते हैं? श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने साहिबजादे देखो, वो दरबार में जदों उन्होंने लिजाया जाता है तो पैर पहला कि सिर नहीं झुक जाए, दरवाजे चों पैर पहला करते हैं। तो बाइबल पढ़ लेना। क्राइस्ट नूं जदों पता हुंदा है कि हुण वो पकड़िया जाने वाला है, दुश्मन का घेरा पै चुका है, पीटरस नूं लैके जांदा है, उसनूं बिठा के कहता मैं प्रेयर कर लवां। जो प्रेयर करता है वो बाइबल विच है। कहता शरीर ते तैयार है, आत्मा तैयार नहीं। जे ये प्याला भाव मौत टल जाए तो चंगा है। साहिबजादियां ने यह गल नहीं कही। क्राइस्ट को कोई चॉइस ही नहीं सी, साहिबजादियां को चॉइस सी मुसलमान बन जाओ। क्राइस्ट को चॉइस नहीं सी रस्ता चुनने की। तो उसने कहा अजे मैं तैयार नहीं हाँ पूरा, इस करके जे ये टल जाए चंगा है। जदों उसने अंतले श्वास लए तो उसने 3 बार ये कहा, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, हे मेरे प्रभु, मैनू क्यों विसार दिता है। श्री गुरु अर्जन देव साहब तत्ती तवी ते ऐन उल्ट कहते हैं। वो कहते गुरु मेरे संग सदा है नाले, सिमर सिमर ते सदा संभाले। कहते मेरा गुरु तो हमेशा ही मेरे नाल है। क्राइस्ट नूं लग रहा है कि वो रब जिहदे ते मैनू विश्वास सी मेरी रखिया करेगा, अज मेरे नाल नहीं है। वो मैनू भुल गया है, मैनू सूली ते टंग के भुल गया है कि मैं उसदा सेवक हाँ। श्री गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह महाराज वो कहते कि गुरु ते नाल ही है, वो मेरे तो वखरा किवें हो सकता है। इस करके फिर वो तेरा किया मीठा लागा नाम पदार्थ नानक मांगा दी स्थिति विच तत्तियां तवियां ते बैठे हुए सन। बंदे दी जेड़ी घाट गुरु ग्रंथ साहिब विच है वो एक संत महापुरुष वाली है, एक परिपूर्ण इंसान जिहड़ा मौत दा भय भी नहीं करता, पर उसकी अध्यात्मिकता नूं सिपाही विच बदलना ये श्री दसम ग्रंथ दी बाणी करती है। क्योंकि वो अकाल जिसका असी मूल मंत्र विच अकाल कह के जाप किया सी, श्री दसम ग्रंथ विच काल पुरख हो गया है। काल विच लैंदा अकाल नूं, समय विच लैंदा परमेश्वर नूं। ये करामात है। श्री दसम ग्रंथ में क्या हनेरे ते चानन सब तेरे ने, नमो अंधकारे नमो तेज तेजे। अंधेरिया भी नमस्कार है क्योंकि इन्हां विच भी तू बसदा है, तेरे तो खाली कोई जगह नहीं है। नमो नित नारायणे क्रूर कर्मे, क्रूर कर्म होंदा बड़ा ही भैड़ा काम। कहते जेड़े क्रूर कर्म संसार विच हो रहे ने ये भी तू आप ही वरत रहा है, इस करके इन्हों भी नमस्कार है, तेरे इस स्वरूप को भी नमस्कार है।
ये उचाइयां ने ਜਿਹੜੀਆਂ श्री दसम ग्रंथ की बाणी में सानू प्राप्त होंदियां ने। वार वार ये कहा जाता है कि पहली तो बेनती ये करा कि दसम ग्रंथ का विरोध एकदम नहीं पनपिया, ਇਹਦਾ विकास होया है। विकास किवें होया? पहला पहल समस्या जो सिंह सभा लहर आई तो ये कहा गया कि दसम ग्रंथ के कई स्वरूप हैं, बाणियां की तरतीब भी जी अगे पिछे है, इस तरतीब को ठीक कर लिया जाए। बाणी की शुद्धता वास्ते एक कमेटी बनी, उधर दूजे पासे श्री गुरु ग्रंथ साहब की छपाई शुरू हो गई, तो उस दे किन्ने पन्ने होण ते केड़ी भीड़ प्रमाणिक मन के पाठ प्रमाणिक करन दा उधर भी काम चल रहा, इधर दसम ग्रंथ दे काम चल रहा है। दूजी स्टेज आई, कुछ लोगों ने कहा कि ये जी कविओ बाच बेनती च पई ते होर थावां ते कविओ बाच लिखिया है, ये कवियां दी रचना है, जिहड़े गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दरबारी कवि सन, ये उन्हां दी रचना है। ये एक होर विचार ऐड हो गया। पहला सी कि पाठ शुद्ध कर लो, फिर कह दिता विश्वास आ गया, थोड़ा फेथ हिल गया कि नहीं ये बाणियां जड़ियां ने कवियां दियां रचना हो सकदियां ने, पर नाल ये क्या गया कि खराब नहीं ने, गुरु जी दे दरबारी कवियां दियां रचना ने। अगला विचार आ गया जी ये ब्राह्मण दियां रचनावां ने, किसी ब्राह्मण की रचना है। तो जदों पूछा गया कि जेड़ा असी पाए गए जब ते तुमरे तब ते को आंख तरे ने आन्यो, राम रहीम पुराण पुराण नेक हैं मत एक न मान्यो, सिमृत शास्त्र बेसबै वो भेद क्या मैं एक न जान्यो, श्री अस्पान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो बखानो। ये ब्राह्मण किवें लिख देगा? राम नूं नहीं मनना, वेदां नूं नहीं मनना, पुराणों नूं नहीं मनना, सिमरतियां नूं नहीं मनना, ये कोई ब्राह्मण किवें लिख सकता है? तो साडे वीर फिर थिड़क गए। फिर वो कित्थे लै गया, ये ब्राह्मणों दियां नहीं, ये शाकतां दियां बाणियां ने। शाकत एक पंथ है जिहड़ा कि योगियां नाथां विचों सिद्धां विचों निकलिया होया पंथ है, जिन्हां दे 5 मकार सन: मास, मच्छी, मदिरा, मुद्रा, मैथुन भोग, काम भोग। इन्हां चीज़ां दा जिहड़ा सेवन खुला करते सन, शराब पी के मच्छी मांस सब खा के फिर वो पूजा कहते सन करते सन, तो फिर खुला भोग करके बिना किसी गिलानी दे, बिना किसी झिझक दे। शाकत, असल शाकत कौन है? जिहड़ा मरे हुए कुत्ते का मांस बिना मन में कोई थोड़ा जिहा भी भाव आउण दे खा जाए, उन्होंने जो बाणी असीं पढ़ते ना, साकत संग ना कीजिए दूरों जाइए भाग, साकत नूं इसे करके इन्ना खराब लिखिया है। तो इन्हां साडे भरावां ने ये विचार दे दिता भी ये शाकतां दी रचना है, ब्राह्मणां दी तां नहीं हो सकदी, शाकतां दी है। क्यों? क्योंकि इहदे विच जी मास का जिक्र आ जाता है, शराब का जिक्र आ जाता है, महाकाल का जिक्र आ जाता है। पर इन्हां वीरां नूं ये ज्ञान नहीं है, क्योंकि धर्म परंपरा हिंदुस्तान की जिहड़ी ट्रेडिशन है उन्होंने जानते नहीं हैं। ये तां कहंदे ने शाकतां दा देवता शिव है, महादेव शिव, ये शाकतां दा देवता है। श्री दसम ग्रंथ में जिहड़े 24 अवतार ने, ये सारे दे सारे विष्णु दे ने, शिव का अवतार है ही नहीं। विष्णु है, ब्रह्मा है, शिव नहीं है। श्री दसम ग्रंथ में कोई शाकतां ने 24 अवतार विष्णु दे सन, विष्णु पूजा ने सिरजे, तो शाकतां ने उहदे पैरेलल शिव दे 28 अवतार बना रखे ने। तो जे किसी शाकत की कोई रचना होंदी तो 28 अवतार शिव दे आने सन कि विष्णु के अवतार आने सन, बंदा पूछे। धर्म नूं जानते नहीं, पढ़िया नहीं, ट्रेडिशन हिंदुस्तान की समझते नहीं। कदे शाकतां का ग्रंथ है, कदे ब्राह्मण का ग्रंथ है। ब्राह्मण ते शाकत दोवें एक मत नहीं हैं, आपस में इट कुत्ते का वैर सी।
ਜਿਹੜੇ शिव की पूजा करने वाले सन वो कहते सन कि विष्णु पूज। मैं प्रमाण ही दे देना, प्रहलाद का झगड़ा की सी? प्रहलाद का पिता हरण्य कश्यप आर्या नहीं सी, विष्णु आर्या का देवता सी। ये ਜਿਹੜੇ आर्या नहीं सन ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ राक्षस कह ਦਿੰਦੇ सन। आर्या लोग नॉन एरियन ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ सन ये राक्षस ने। ਤੇ प्रहलाद का पिता ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਸੀ शिव का पुजारी, क्योंकि वो नॉन एरियन है। शिव ਜਿਹੜਾ है नॉन एरियन देवता है। ये तो ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਲਿਆ ना। वो नॉन एरियन देवता है जिहदा ऋग्वेद में कोई जिक्र नहीं है। सिर्फ चौथे वेद अथर्ववेद के टाइम से ये परिवर्तन आए हैं। इस करके पुराने ब्राह्मण जिहड़े हुंदे सन वो अथर्ववेद नूं पढ़दे ही नहीं सन। वो कहते सन ना वेद की सिक्ख्या जिहड़ी है जदों उपनिषदां में दर्शन करने नूं त्रई विद्या की आई, 3 वेदां की विद्या। चौथा वेद कुलीन ब्राह्मण नहीं सी पढ़ता। क्यों? क्योंकि उहदे च शिव आ गया। शिव पूज जिहड़े ने वो 28 अवतार पैरेलल बना के बैठे ने। विष्णु के 24 अवतार ने। श्री दसम ग्रंथ में शिव नहीं आया। रुद्र अवतार जरूर आया जिन्हों मगरों शिव नाल मिला दिता है, परंतु रुद्र वैदिक देवता है। हुणे 24 अवतार लिखे क्यों गए? गुरु जी ने की लोड़ पै गई भी हिंदू अवतारों लिखती? वड्डी समस्या तो इत्थे ही है। कुछ लोग ये समझते हैं कि ये अवतार सिख नूं हिंदू मत नाल जोड़ते हैं। इस करके ये अवतार जिहड़े ने ये कथावां गुरु जी नहीं लिख सकते। गुरु जी ने हिंदुस्तान के सारे लोगों नूं जुर्म के विरुद्ध इकट्ठे करना सी। उन्होंने पहाड़ी हिंदू राजा ने भी कहा मेरे नाल आओ, ये जो मुगलों का साम्राज है ये हिंदुओं का धर्म नष्ट कर रहा, तो तुसीं मेरे नाल होना चाहिए। परंतु वो जातिवाद के अंकार में फस के वो कह लगे नहीं, ये जोड़े शूद्र ने ना, आ जोड़े जट ने, नाई ने, घाई ने, ये जोड़े चमार ने, ये जोड़े कलाल ने, इन्हां सारियां नूं तुसीं पासे कर दिओ, फिर असीं उच्ची जाति के सारे ही तुहाडे सिख बन जाने। तो महाराज ने कहा कि नहीं, इन गरीब सिखन को दी पातशाही ये याद करें हमारी गुरियाई। तुसीं किहड़े मेरे उपकार याद करने? तुसीं तो कहोगे असीं राजे सां, परंतु ये याद करनगे कि किस शूद्र वाली अवस्था विचों उठा के इन्हां नूं उच्चे सरदार बना दिता धरती दे। ये तो मेरे उपकार याद करनगे। तो मैं ये बेनती कर रहा सी, हिंदुस्तान की लोकां विच स्वैमान भरना सी। उन्होंने इत्थों के अवतारां नूं योद्धियां के रूप में पेश किया कि यह नहीं कि तुहाडा विरसा कमज़ोर है, तुहाडा विरसा तो तकड़ा सी, क्योंकि एरियन बहुत तकड़े सन। कित्थों चल के यूरोप तो गए, परशिया विच गए, इंडिया विच आ गए, सारा इन्होंने जित के जिहड़े मूल विछिंदे सन उन्होंने दखन विच धकेल दिता। तो कह लगे तुसी अपना गौरव इत्थों के लोग गवा चुके ने। तुहाडे जिहड़े देवी देवते सन कमज़ोर नहीं सन, वो तकड़े सन। ते नाल नाल उन्हां की कीता कि देवी देवतियां दा रुतबा वधाया नहीं घटाया है। उन्होंने कहा ये जिहड़े देवी देवते तुसी कहंदे हो ये बहादुर बंदे सन, राजे सन, युद्ध विच लड़े ने, परंतु ये कोई अवतार नहीं सन, कोई रब नहीं सन, परमेश्वर नहीं सन। मैं एक प्रमाण देवांगा। कृष्णा अवतार दसम ग्रंथ की लंबी रचना है बहुत। एक लंबी रचना जी है वो चरित्रोपाख्यान है, तो एक लंबी रचना जी है वो कृष्णा अवतार है। कृष्णा अवतार बहुत लंबी रचना है। यदी जी रचना भी हुई है ये भी एक थोड़ा जहा विस्माद वाली गल है। 3 भाग ये प्रमुख इस वेले हैं। पहला भाग खत्म होता है वो 1745 संवत खत्म होता है, लास्ट भी 1745 खत्म होता है। विचला भाग 1744 मुकदा है।
ये जेड़े वीर समझते नहीं वो कहते जी आरंभ में 1745 संमत तो फिर ये संमत 1744 किवें आ गया, ये तो मिलावट है। मिलावट करने वाला बंदा तो इन्होंने चीज़ों दी सावधानियां रखता है, परंतु असलीयत सी इस करके 1744 है। कृष्ण की कथा लिखनी ये गुरु जी का प्रयोजन नहीं सी, उन्हों का वड्डा प्रयोजन सी कृष्ण का वीर रूप दसना, तो फिर कृष्ण के उत्ते सिंह की स्थापति करनी, उच्चा बनाना सिंह नूं, कृष्ण का उच्चा। इस करके उन्होंने पहला भाग केड़ा लिखिया, युद्ध प्रसंग लिखिया, कृष्ण नाल खड़ग सिंह का युद्ध। ये भैनों ते भरावो बच्चिओ, कृष्ण दी जेड़ी जीवनी है लाइफ, कृष्ण लीला जेड़ी भी कोई भी ग्रंथ है हिंदुस्तान का, कोई खड़ग सिंह बंदा नहीं उहदे च, सिंह नाम के बंदे उदों है ही नहीं सन। गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कृष्णा अवतार एक नवा कृष्णा अवतार बनाया है, वो पुराना कृष्ण अवतार नहीं है, नवा कृष्ण अवतार है जेड़ा बलहीन है, सर्वसमर्थ 16 कला संपूर्ण परमेश्वर नहीं है, बल्कि कमजोर बंदे के सामने कमजोर है। एक चैप्टर है खड़ग सिंह का युद्ध कृष्ण नाल। खड़ग सिंह कृष्ण नूं वालां तो पकड़ लैंदा है। पहला ध्यान रखना लड़ाई किहदे नाल है, उस वेले च जाओ, लड़ाई है पहाड़ी राजियां नाल जिहड़े कृष्ण ते राम दे पूजा करने वाले ने, उन्हां नाल युद्ध है। लड़ना किन्ने सिंह ने, सिंह तकड़ा एक पेश करने वास्ते उन्होंने खड़ग सिंह एक नवा करैक्टर बना लिया, खड़ग सिंह करैक्टर खड़ा कर दिता है। वो नाल भी सिंह ने खलोते और बड़े सोहने सोहने नाम उन्होंने रखे ने, उन्होंने बहादुर वाले, और जिन्हों नामों च ब्यूटी है बहुत, क्योंकि उन्होंने सिंह सिरजना है ना अगे जाके 1699 की विसाखी ते सिंह सिरजना है, इस करके बड़े सोहने नाम सिंघां दे उन्होंने दिते ने। फिर होर है 5 प्यारियां का कंसैप्ट पिया होया है, 5 सिंघां का जथा कृष्ण के विरुद्ध निकलता है। खड़ग सिंह कृष्ण नूं वालां तो पकड़ लैंदा है, कहता मैं तेनों मार सकदा, चाहां तो हुणे ही तेरा सिर ला दियां, मारांगा इस करके नहीं क्योंकि मेरे नाल लड़ेगा कौन, तू एक बहादुर बंदा है, मेरा मुकाबला तू ही कर सकता है। कितनी बड़ी सिक्ख्या है, इसनूं तुसीं रिलेट करो मोहसिन फानी की रचना नाल, दबिस्ताने मजाहिब। कहता है एक सिख मैनू कहन लगा कि श्री गुरु हरगोबिंद साहब महाराज जी ने पैंदे खां ने उन्होंने वार किए, रोक लए, तो फिर पैंदे खां उत्ते वार करके कहते ने तलवार इंज नहीं इंज चलाई दी तो उहदे नाल मार देंदे, कहते उन्होंने कहने की लोड़ सी उस वेले ये गल क्यों कही किसी सिख ने कहा। तो दबिस्ताने मजाहिब का करता जिहड़ा सिख नहीं उस सिख नूं जवाब दिंदा है गुरु युद्ध के मैदान में भी गुरु है, वो ये सिक्ख्या दे रहा है कि तलवार गुस्से च नहीं चलाई दी, और किसी नूं मारना एम नहीं है, लड़ाई है एक निरंतर। माता गुजरी जी कहन लगे बेटा सिख चाहते ने किला छड़ दिओ, उन्होंने कहा कि ये इस दे नतीजे नहीं जानते, इन्हों पता नहीं कि बाहर निकलांगे कि की स्थिति बनेगी। उन्होंने कहा तुसी जितते नहीं जाओगे, इन्ना घेरा पिया है। उन्होंने कहा लड़ाई जित हार वास्ते नहीं है, ये एक निरंतर संघर्ष है जिसका कदे अंत नहीं होना। जालमा ने जुल्म करते रहने ते जुल्म रोकण वालियां ने उहदे नाल लड़ते रहना है। इस करके ये तो निरंतर संघर्ष है, इत्थे हार जित का तो कोई सवाल ही कोई नहीं। हार तो उदों होवेगी जे वो आनंदपुर साहब छड्ड के ते हथियार सुट देंदे,
चमकौर की गढ़ी च लड़े ने, मुक्तसर गए ने उत्थे लड़े ने। ये तो लड़ाई लगातार चल रही है। उन्होंने कहा यह संघर्ष है। कृष्ण को मारिया इस करके नहीं दिखाया क्योंकि बुराई के खिलाफ खड़ग सिंह ने सदा जूझते रहना है, और वह किसी ने बैर भी नहीं सीखता कि उन्हें मार देना ना। जो शरण आवे तिस कंठ लावे। जे निहत्था हो गया तो निहत्थे ते वार नहीं करना। क्या जा तेरी जान बख्श दी है। हुण कृष्ण फिर लड़दा फौजा लैके, खड़ग सिंह काबू नहीं आता उहदे। फिर कदे ब्रह्मा नूं बुलाया जाता है, कदे विष्णु नूं बुलाया जाता है, अखीर विच सारे ही देवी देवते बुलाए जाते हैं। कौरव ते पांडव भी बुलाए जाते हैं, सारे ही सद लै जाते हैं। राम भी उत्थे, अगले पिछले सारे देवी देवते, स्वर्ग का राजा इंद्र भी आ गया। ते फिर भी कामयाबी नहीं मिली। फिर पूछन लगे ब्रह्मा नूं, दसो ये मारिया किवें जाएगा। कहन लगा इको ही तरीका बचा है। दसो जी की तरीका बचा है। कहंदे इंद्र नूं कहो कि स्वर्ग विचों परियां नूं धरती ते भेजे, अप्सरा भेजे, सुंदर इस्त्रियां भेजे स्वर्ग विचों। जदों ये लड़ाई कर लगे तो तुसीं उन्हां दा नाच शुरू कर दिओ, डांस शुरू कर दिओ। जदों इहदा ध्यान उन्हां परियां वाल जावे उस वेले तीर मार दिओ, मर जाएगा। यही किया गया, यही चाल चली। परियां बुलाइयां, नाच होया, खड़ग सिंह का ध्यान गया तो तीर मारिया तो उसनों खत्म कायल कर दिता। फिर भी उसने ऐलान कर दिता जावांगा अपनी मर्जी नाल, तुसीं नहीं मैनूं भेज सकते, अपनी मर्जी नाल जावांगा। एडा तकड़ा करैक्टर कृष्ण अवतार च गुरु जी ने सिरजिया है। तो खालसे नूं दस्सिया कि खड़ग सिंह बन के भी जे तेरा ध्यान रूप वाल चलिया गया मारिया जाएगा, जे तेरा ध्यान भटक गया तो उस वेले तेरी मौत हो जाएगी। इसों वड्डी सिक्ख्या और किहड़ी हो सकती है। एडी वड्डी सिक्ख्या, एडा वड्डा उपदेश कृष्णा अवतार विच पहला सिंह बनाना, फिर पंज सिंघां दा कंसैप्ट देना, फिर दसना कि सिंह कितना सूरबीर है। सब देवी देवते उहदे चरनां च निभ सकते हैं। ते नाल फिर ये संदेश देना जे आचरण तो गिर जाएगा तो सब कुछ जाता रहेगा। गुरु जी ने कहा कि ये जिहड़े मैं अवतार कथावां लिखियां ने इन्हां दा निशाना की है, क्यों लिखियां ने। अवर वासना नाहे मोहे धर्म युद्ध कै चाहे, कोई होर निशाना नहीं है। लोकां विच सूरबीरता भरनी है, धर्म युद्ध का चाह पैदा करना है, धर्म वास्ते जूझ सकन। अरिहंत अवतार, बौद्धू अवतार, बुद्ध जी महावीर जैन अरिहंत। महावीर जैन ने कदे शस्त्र चुके ने, महात्मा बुद्ध ने कदे शस्त्र चुके ने। बोधी बन गया अशोक ते शस्त्र सुट दिते। ये दो विचार ऐसे सन, दो संप्रदावां जिन्होंने हिंदुस्तान नूं 1000 साल की गुलामी दी है। तो गुरु गोबिंद सिंह महाराज पकड़ के लियाए महावीर जैन नूं, युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिता। महात्मा बुद्ध नूं युद्ध के मैदान में खड़ा कर दिता। मैसेज दे दिता कि आ जिहड़े तुसीं त्यागवादी बन के बैठे हुए हो, पहाड़ों में छिप के समाधियां ला के बैठे हो, जदों तक युद्ध के मैदान में सारा हिंदुस्तान नहीं आता जुल्म का नाश नहीं कर सकोगे। ये गुरु गोबिंद सिंह महाराज सच्चे पातशाह हैं। ये दृष्टि है महाराज जी की। भाई छोटिया छोटिया एवं गलतियां जियां कढ़ के महाराज अपने दियां गलतियां, ये इत्थे ये गलती हो गई, इत्थे ये गलती हो गई है, पता ही कोई नहीं। जदों उन्होंने युद्ध प्रसंग लिख लिया, फिर कृष्ण लीला पूरी करने वास्ते फिर पहला भाग लिखा। पहला विचला भाग आया, फिर पहला भाग लिख के तो कथा संपूर्ण कर दी।
एक प्रयोजन श्री गुरु जी का यह सी कि युद्ध का चाह पैदा करना। दूजा, हिंदुस्तान में इस्त्री की स्थिति बहुत खराब सी। मैं बेनती करा, इस्त्री शब्द के अर्थ बड़े माड़े ने, कामनी दे माड़े ने। जिन्ने नाम औरत नूं संस्कृत के ग्रंथां ने दिते ने, वो एक भी नाम चंगा नहीं, बड़े भैड़े ने। त्री की हुंदा है? माया के 3 गुण। सात्री माया के 3 गुणा वाली। माया का मतलब की होया? अविद्या, अज्ञान, इग्नोरेंस, तमस, अंधेरा। ये माया के अर्थ ने। इस चीज़ का स्वरूप केड़ा चित्रिया कि ये अंधकार है, ये अविद्या है, ये काम भोग की वस्तु है, काम नहीं बनाता। ये तो काम भोग की वस्तु होगी, एक कमोडिटी होगी, मनुख नहीं रहेगी, पुरुष के भोग की वस्तु होगी हिंदुस्तान के विच। इसे करके जदों तक घर गृहस्थी लई चाहिए है, ठीक है, नहीं तो अनुसार दो। पति मर गया, उन्हें की करना है? अग में जला दो। पति मर जाता, मनु सिमरती जी वो कहती है जे स्त्री का पति मर जाए तो पुरुष की जायदाद जी है उस उत्ते, उस प्रॉपर्टी ते उसका कोई अधिकार नहीं। जे उसका पुत्र है तो वह वारस पुत्र बन जाएगा, नहीं तो उसके भरा वारस हो सकते हैं। जे कोई वारस नहीं तो फिर इस स्टेट की प्रॉपर्टी हो जाएगी उस स्त्री नूं। जिस स्त्री का पति मर गया है, मनु कहते तो सारी प्रॉपर्टी भी खोल लो ताकि वो जिंदा रहन का उन्होंने कोई अधिकार ही नहीं है। ये स्थिति सी जिथे पैर की जुत्ती यदि मत गुत पिछे है। घटिया घटिया शब्दावली स्त्री लई वरतनी। ते महाराज सतगुरु गुरु नानक देव सच्चे पातशाह ने कहा, पंड जमीए पंड निमीए पंड मंगण विआह, पंडों होवे दोषी पंडों चलै राह, पंड मुआ पंड पालीए पंड होवे बंधान, सो क्यों मंदा आखिए जित जमे राजा। कि तुसी उस स्त्री नूं जिस पेट विचों जी मात गर्भ विच तुहानूं 9 महीने तुहाडा शरीर बनाती है, उसी सैक्रीफाइस, उसका प्यार, वो सारा कुछ भुल के ते तुसी उन्हों खराब कह रहे हो। जो बादशाह जिसने भगतां नूं जन्म दिता, जिसने बादशाहां नूं जन्म दिता, अवतारां नूं जन्म दिता, तुसी उसनूं खराब कहते हो। ये जिहड़ा विचार सी श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के सामने बहुत चंगी तरह सी। उन्होंने पता सी अद्धा समाज जेकर बुराइयां के विरुद्ध नहीं लड़ेगा, कल्याणकारी समाज नहीं बन सकता, तकड़ी निरोई तंदुरुस्त मनुखता नहीं बन सकती। हैल्दी ह्यूमैनिटी सिरजण वास्ते पुरुष के नाल स्त्री नूं संघर्ष करना पवेगा। ये नाल दा मतलब भी थोड़ा जिहा आपां नूं अजकल बड़ा गड़बड़ हो रहा है। गड़बड़ की हो रहा है कि बच्चों के माइंड में बाहरों क्वेश्चन आ रहे हैं। बच्चे पढ़े लिखे ने, कहते जी आनंद कारज वेले बीबी पिछे पिछे क्यों चले। हुण भाई जे पिछे नहीं तो अगे चलना पेगा। फिर झगड़ा तो हो गया उत्थे ही शुरू। वो कहेगा मैं पिछे क्यों चलना, तो वो कहे मैं क्यों पिछे चलना, तो घर किवें वसेगा। हुण कहंदे जी बराबर बराबर चल लो, जरा चल के दसो बराबर। जिहड़ा बंदा बाहरले पासे जे बंदा बाहर कर दोगे तो वह स्त्री की परिक्रमा करेगा, जे स्त्री नूं बाहरले पासे खड़ा कर दोगे तो वह बंदे की परिक्रमा करेगी, गुरु जी की परिक्रमा ही नहीं करेगी। हुण वो गुरु की परिक्रमा करती है, बाहर वाली बंदे की परिक्रमा करेगी। क्यों? क्योंकि परिक्रमा हुंदा है एक व्यक्ति ते उस दे इष्ट विच होर कोई ना आवे। जे कोई विच विचाले आ गया तो परिक्रमा तो नहीं होगी। फिर कहिए जी चलो बैठ के कर लो आनंद कारज। तो बेटा जी बैठ के आनंद कारज जे करांगे आपां तो फिर समस्या आएगी कि खब्बे कौन बैठे सज्जे कौन बैठे। ये झगड़ा जे पहले ही पा लिया तो घर किवें वसेगा।
इस करके जिहड़ा पुरुष है युद्ध के मैदान में उसकी पहली ड्यूटी है, पर लोड़ पैण ते इस्त्री भी माई भागो वांग जूझ सके, बीबी हरशरण कौर वांग जूझ सके। इसलिए बीबी नूं भी अपनी रख्या वास्ते दूजियां दी मदद वास्ते किरपान पहनाई गई है, पर पहली ड्यूटी बंदे दी है। फ्रंट ते इस्त्री का जाना एक खतरे वाला काम है। क्यों? फ्रंट ते दुश्मन के हाथ बंदा आ जाएगा, उन्होंने मार दिता जाएगा ना, बद तो या कैद कर दिया जाए, मार दिता जाएगा। इस्त्री की दुश्मन बेपत्ती करेगा, पुरुष की नहीं कर सकता, पुरुष नूं मार सकता है। इस करके तुहाडे जिहड़े ये एडवांस कंट्री ने इन्होंने भी हुणे यही रिव्यू किया भी नहीं, फ्रंट ते नहीं बीबी नूं भेजना चाहिए। बराबरी ये नहीं है, बराबरी देवे एजुकेशन च बराबरी होए। घर में जिहड़ा सी साडे की हुंदा सी कि मुंडियां नूं खुराक ज़्यादा देनी ते कुड़ी नूं घट देनी, वो डिस्पैरिटी नहीं होनी चाहिए। घर में इज्जत होनी चाहिए, मान सन्मान दोवां नूं एक दूजे का करना चाहिए। बंदे नूं थोड़ा जिहा टफ बनाया बंदे ने, रब ने, ते स्त्री नूं कोमलता दी है, निमरता दी है, मिठास दी है। माता जीतो जी ने पतासे क्यों पाए सन? अमृत विच मिठास आ जाए। ये घर दे जिहड़ा घर दा अमृत है ना सतसंग दा, इहदे विच मिठास स्त्री ज़्यादा भर सकती है। ये नहीं कि पुरुष जिहड़ा है उसनूं उहदा बिहेवियर खराब होना चाहिए, उसनूं ही निमर होना चाहिए है। पर स्त्री दी एक मुस्कुराहट घर दे खराब वातावरण नूं पलां च बदल सकती है। इस करके समाज नूं उस दिशा में लैके जाइए जिहड़ी दिशा में एक सुखी परिवार बन सके। जे गुरु के दरबार में ही झगड़ा कर लिया, मैं अगे कि तू अगे, जिथे अरदासां करनियां ने, सच्चे पातशाह कृपा करो सानू सारी जिंदगी का प्यार जन्म मरण साडा साथ निभे, जिथे ये अरदास करनी है उत्थे ही झगड़ा पा के बह गए हंकार दा, ते अगे गृहस्थी गड्डी चलनी औखी हो जाएगी। सो ये मेरी बेनती है। श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने ये वेख लिया समाजिक बुराइयां का मुकाबला, क्योंकि बुराई दो तरह की है, एक तो दुश्मन नाल बाहर लड़ना, उन्होंने रोकना है, दूजा की है कि जिहड़ियां समाज दे विच होर इविल ने इन्हां दे विरुद्ध संघर्ष करना। श्री गुरु अमरदास महाराज जी ने पुरुषों नूं दित्ती मंजी ते बीबियां नूं पीढ़ी, छोटी छोटे करने वास्ते नहीं, रुतबा छोटा नहीं ना, पीढ़ी दित्ती कि घर तू सुधार सकती है। ये बाहर प्रचार वास्ते जिहड़े ने मसंद दूर दूर देशों च भेजे, पुरुष भेजे, पर क्या कि घर कौन संभालेगा? घर में धर्म की रखिया जिहड़ी है वो स्त्री कर सकती है। बच्चों में धर्म का संचार स्त्री ने करना है, वो पुरुष उतने चंगे तरीके नाल नहीं कर सकता। तो महाराज जी ने कृपा की, श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने उन्होंने सामने एक लक्ष्य सी बंदे नूं जुझारू बनाउणा, तो उन्होंने सामने दूजा वड्डा लक्ष्य सी जिस स्त्री नूं पैर दी जुत्ती कर दिता है उसनूं उस दे सन्मानयोग जिहड़ा रुतबा है उत्थे शोभित करना, उत्थे पहुँचाना। ये उन्होंने सामने एक बहुत वड्डा प्रयोजन है। मैं बेनती करांगा कि दसम ग्रंथ पहला जाप साहब पढ़ते सी, उस तो बाद अकाल उस्तत आती है। अकाल उस्तत तो बाद बचित्र नाटक आत्म कथा गुरु जी की हुणे रागी सिंघा तो तुसी सुन रहे सी कि अब मैं अपनी कथा बखाना, तब साधत जेह बेदी मोहियाना, हेमकुंट पर्वत है वो तुसा हुणे श्रवण किया, रागी सिंघा तो बड़े प्यार नाल गायन सुनिया। इस आत्म कथा जिहड़ा बचित्र नाटक लम्मा है, इन्ना नहीं है, असी इन्ने को बचित्र नाटक नूं जानते हैं, पर सारियां अवतार कथावां जिहड़ियां ने ये बचित्र नाटक का पार्ट ने। हुण बचित्र नाटक किहड़ा है? ये नाटक संसार का ड्रामा, विचित्र जिहड़ा कदे नहीं वेखिया पहला। विचित्र किस चीज़ नूं कवांगे? जिहड़ी पहला नहीं कदे दर्शन पाए, जिन्हों वेख के तो वाहिगुरू निकल जाए मूँह विचों, वे वाह कमाल है। कोई ऐसी चीज़ वेखी है जी पहला कदे नहीं वेखी, फिर मूँह चो वाह निकलते ना। इस तरह जो रब दे इहो जिहा दीदार करिए
ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਨੁਭੂਤ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੱਕ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੋਤਾ ਰਟਣ ਨਹੀਂ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਇੱਕ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਤੇ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀ ਦੀ ਵਾਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ, ਪਹਿਲਾਂ 9 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਦੀ ਆਰਾਧਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਆ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਦਾਵੇ ਤਾਏ, ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਪੌੜੀ ਕੀ ਹੈ? ਖੰਡਾ ਪ੍ਰਿਥਮੈ ਸਾਜ ਕੇ ਜਿਹਨੇ ਸਭ ਸਹਿਸਾਰ ਉਪਾਇਆ। ਬ੍ਰਹਮਾ ਵਿਸ਼ਨ ਮਹੇਸ਼ ਸਾਜ ਕੁਦਰਤੀ ਦਾ ਖੇਲ ਰਚਾਏ ਬਣਾਇਆ। ਆਹ ਖੇਡ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਹੈ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਨ ਨਾਨਕ ਇਹ ਖੇਲ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਖੇਡ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਖੇਡ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਉੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਖੇਡ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਬੁੱਧ ਜੀ ਜਦੋਂ ਜਿੱਧਰੋਂ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰਵਮ ਦੁਖਮ, ਸਭ ਦੁੱਖ ਹੀ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੀ ਦੁੱਖਵਾਦ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਧਾਂਤ ਹੈ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਕਿ 7 ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਨਾ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਤਨੇ ਅਥਰੂ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਘੇਰੇ ਨੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਜਰਾ, ਸਤ ਸੁਹਾਨ ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ। ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਜਗਤ ਬਣਾਇਆ ਇਹ ਸਤ ਸਰੂਪ ਹੈ। ਜਗ ਸੱਚੇ ਕੀ ਹੈ ਕੋਠੜੀ, ਸੱਚੇ ਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ। ਫਿਰ ਕੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਹੈ, ਸੁਹਾਨ, ਸ਼ੋਭਨੀਕ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁੰਦਰ। ਸਦਾ ਮਨ ਚਾਓ ਕੀ ਹੈ? ਆਨੰਦ। ਇਸ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਬਿਖਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਫਲਸਫਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਭਿਕਸ਼ੂ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੈਗਰ ਬਣਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਸਲੋਗਨ ਸੀ ਸਰਵਮ ਸੁਖਮ, ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਨੂਰ ਵਸਦਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਉਹ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਸਭ ਪਾਸੇ ਆਨੰਦ ਹੀ ਆਨੰਦ ਹੈ। ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਉਹ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਆਪਣੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ। ਤੋ ਬਚਿੱਤਰ ਨਾਟਕ ਇੱਕ ਐਸਾ ਨਾਟਕ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਨਾਟਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾਟਕ ਵਾਂਗ ਥੋੜ੍ਹਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਮਨਾਂ 'ਚ ਵਿਵਾਦ ਨੇ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਵਿਵਾਦ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਵਿਵਾਦ, ਬਾਹਰ ਵੀ ਝਗੜਾ, ਘਰ 'ਚ ਵੀ ਝਗੜਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਝਗੜੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਰ ਮਨ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਇੱਕ ਖੇਡ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਭਲੇ ਬੁਰੇ ਦੀ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਭਲਾ ਹੈ ਬੁਰਾ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਹੀ ਸਭ ਭਲਾ ਹੀ ਹੈ ਰੇ, ਇੱਕ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਨਿਤ ਹੈ। तो मैं बात कर रहा सी कि बचित्र नाटक बहुत लंबा है, जिहदे 24 अवतार आ जाते हैं, जिहदे चंडी चरित्र आ जाते हैं। जदों आत्मकथा गुरु जी ने कह ली, भंगाणी नदौन आदि के युद्धां तो बाद आनंदपुर साहब वापस परत आए। फिर कहन लगे कि हुण असीं बजुर्गां दीयां कथावां जिवें जिवें पुराणियां होईयां ने, हिंदुस्तान के जिहड़े वड्डे बजुर्ग ने, जिहड़े अवतार होए ने, इन्हां दीयां कथावां लिखांगे। पर की कहंदे ने, पहला चंडी चरित्र लिखांगे। एक तो साबित हो गया कि चंडी चरित्र उस ने लिखे ने जिसने बचित्र नाटक लिखा है, आत्मकथा लिखी है। दूजा की है कि अकाल उस्तत दे आरंभ विच अकाल पुरख नूं अकाल कह के बचित्र नाटक में लिखा काल जी की उस्तत। तो समझ आ गया, जिसने अकाल उस्तत लिखी है उसने काल जी की उस्तत लिखी है, लिखारी एक ही है। उन्हें क्या पहला चंडी चरित्र लिखांगे, फिर अवतार कथा होएगी। क्यों? इस्त्री नूं पहला लियाउणा है, जिहड़ी पिछे है समाज का हिस्सा।
समाज का अध जिहड़ा पिछे है। असी बाणी पढ़ते हैं ना, कबीर साहब कहते हैं सुन्नत की ये तुर्क जे होएगा औरत का क्या करिए, अर्ध शरीरी नार जे छोटे तांते हिंदू ही रहिए। कहते की लेने मुसलमान बन के, जदा समाज ही छड्ड दिता, अद्धा समाज बुरके में चला गया, तो फिर किहड़ा कल्याणकारी समाज किवें बन सकता है। वो जिहड़ी बुरके में रखी औरत सी, वो इस्त्री जिसनों पिछे रखा गया सी, जिसनों पैर की जुत्ती बना के रखा सी, श्री गुरु जी ने कहा मैं पहला इहदी गल करांगा। तो उन्होंने उक्ति बिलास चंडी चरित्र, फिर चंडी चरित्र, फिर तीजा पंजाबी विच कि सिख चंगी तरह समझ लवे। पहले तो ब्रज भाषा च ने दोवें, पर फिर उसे जिहड़े चंडी की कथा सी उसे उन्होंने सरल पंजाबी विच लिख दिता कि सिख इसनों पढ़ सुन के इस्त्री की सूरबीरता जिहड़ी है उन्होंने देख सके। कहानी की है, इंद्र नूं ते राक्षस हमला कर देंदे ने, राक्षस कुट मार के इंद्र नूं भजा देंदे ने। जदों दौड़ जांदा है, हार जांदा है, ते फिर वो दुर्गा कोल आउंदा है। दुर्गा कौन है? इत्थे इस्त्री हो जाती है। कहंदा तू मेरी मदद कर। वो जाती है, राक्षसां नूं मार के भजा देंदी है, राज फिर इंद्र नूं दे देंदी है। इहदे विच त्याग है इस्त्री दा। लोड़ पैण ते जिथे पुरुष फेल हो गया, जिवें जिन्हां नूं असीं कहने भाई महा सिंह दे साथी बेदावा दे के जदों चले गए, तो अगे किहड़ी दुर्गा, अगे किहड़ी भगौती, अगे किहड़ी चंडी खलोती है? माता भाग कौर खलोती है। वो फेल हो के चले गए इंद्र वांग, ते अगे माई भागो जिहड़ी है वो दुर्गा वांग खड़ोती है। किधर जा रहे हो? असी भी ये काम कर सकदियां, तुहाडे नालों ज़्यादा निष्ठा नाल कर सकदियां। ये गौरव है इस्त्री नूं जिहड़ा गुरु महाराज जी भरना चाहुंदे सन। ते उन्होंने चंडी दी वार लिखी। साडे वीर जिहड़े ने कहंदे ने चरित्रां विच औरत दी बड़ी खराब तस्वीर पेश की गई है। ये बड़ा वार-वार कहंदे ने। गुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज ने इस्त्री दी तस्वीर खराब पेश नहीं की, बल्कि जो तस्वीर समाज ने बना रखी सी वो सामने रखी है। कृष्ण लीला दे विच गोपियां दियां रास लीला जिहड़ियां ने, गोपियां नाल उन्हां दा जिहड़ा लव अफेयर्स ने, ते वो सारियां गल्लां ने, वो कृष्ण लीला दा एक पार्ट हैं जिहड़ा कढ़िया नहीं जा सकता उन्हां दी लाइफ चों। तो कृष्ण अवतार में वो गल्लां आउणियां सन। श्री गुरु साहब ने की कीता, जिथों रास लीला शुरू होनी है, गोपियां दी गल्लां शुरू होनियां ने, उत्थे पहला चंडी दी उस्तत ला दी। नारी दी उस्तत, ये तलवार है, ये कटार है, ये तुपक है, ये कई प्रकार दियां कितनियां वैरायटीज़ दियां जिहड़ियां ने वो तलवारां लिख के ते क्या है कि इस्त्री है इस भाग दी इस तरह की तलवार है। मैं चरित्रोपाख्यान दियां पंक्तियां पढ़ांगा। तू ही खड़ग धारा, तू ही बाढ़वारी, ये किनू क्या इस्त्री नूं, तू ही तीर तलवार काती कटारी, हलबी जुनबी मगरबी तू ही है। एक तलवारां दे नाम ने। निहारो जहाँ आप ठाडी वही हैं, तू ही जोग माया, तुसी बागबानी, तू ही आप रूपा, तू ही श्री भवानी, तू ही बिसन, तू ब्रह्म, तू रुद्र राजा, तू ही विश्व माता, सदा जय विराजा। इस तरह की उस्तत जिहड़ी है वो रास लीला दियां कहानियां तो पहला लगा दी थी कि रास लीला की जिहड़ी कथा लिख रहे हैं ये कथा अनुसार है, परंतु मेरे विजन दे विच नारी जिहड़ी है वो इस तरीके की है, वो इतनी ऊंचाई उत्ते शोभित है। फिर की है कि चरित्रोपाख्यान की कथा शुरू होनी सी। जिहड़े चरित्र उन्हें दसने सन उन्हां विच फिर इस तरह लगता सी कि जिवें इस्त्री का चरित्र खराब हो रहा है। तो उन्होंने पहला आ जिहड़ियां मैं पंक्तियां ने ये शुरू च ला दित्तियां कि ये जिहड़ी नारी की तस्वीर है जिहड़ी अगे चरित्रां विच आएगी, ये वो है जिहड़ी समाज ने बना रखी है, परंतु मेरे मन दे विच नारी इहो जी नहीं है।
मेरे विजन की जिहड़ी नारी है वो तो तलवार है, वो कटार है, वो दुश्मनों का नाश करने वाली है, वो इंद्र नूं राज दिवाण वाली है, वो राक्षसां का सर्वनाश करने वाली है। ये चीज़ां जिहड़ियां ने उन्होंने पहला लिख दिते। जिहड़ा चरित्रोपाख्यान है, इनू आपां ध्यान नाल समझीए दे भाग किन्ने बनते हैं। पहला चंडी उस्तत, चंडी उस्तत तो बाद चरित्र शुरू हो जाते हैं। चरित्रां की समाप्ति तो बाद फिर सबुद्धिवाज, उंज ये सारे चरित्रां का हिस्सा ने। ये चंडी चरित्र जिहड़ा पहला है, इसनूं भी चरित्रां विच कैलकुलेट किया गया है कि असल शुद्ध चरित्र तो इस्त्री का शुद्ध रूप तो ये है। फिर अगे सबुद्धिवाज, तो उस तो बाद जिहड़ा है समाप्ति कबियोबाज बेनती चौपाई ये होती है। चरित्रोपाख्यान के अर्थ की ने? चरित्र का करैक्टर, किसी का करैक्टर चित्रण करना, वो चरित्र है। उप आख्यान, उप होंदा छोटी, आख्यान होंदा कथा, छोटियां कथावां। उप आख्यान कित्थे आएगा? जिथे एक वड्डी कथा है। वड्डी कथा दे विच छोटियां कथावां। वड्डी की कथा की है कि नारी, तो उस विच फिर उसकी समाज ने तस्वीर किवें बिगाड़ी है, तो वो फिर तस्वीर जिहड़ी बिगड़ी हुई है उसदे किहड़े भयानक नतीजे सामने आउंदे ने, वो चीज़ां साहिब दसम पातशाह महाराज जी ने चरित्रोपाख्यान में दसियां ने। जदों चंडी उस्तत खत्म होंदी है, चरित्र कथावां शुरू होंदियां ने, तो कथा वड्डी की है। राजा चित्र सिंह है। हुण ये सारे नाम जिहड़े ने देखो, ये बिल्कुल काल्पनिक नाम ने, कल्पित कीते नाम ने। चित्रसेन, उहदा नगरी किहड़ी है जिथे रहिंदा है? चित्रवती नगरी है। उहदी राणी किहड़ी है? चित्रमती है। चित्रमती कौन है? रंग रलियां विच पई इस्त्री। चित्रसैन कौन है? वो राजा जिहड़ा रंग रलियां विच काम आदि भोगां च पै गया। तो चित्रवती नगरी किहड़ी है जिथे वो राजा रंग रलियां मनाउंदा है, ते अगे प्रजा भी उहो जी हो जाने। ये दस्सिया कि समाज विच इस्त्री का स्थान खराब करने वाली चीज़ां जिहड़ियां ने वो रंग रलियां हैं। राजे की जिहड़ी पत्नी है, एक बच्चे नूं जन्म दिंदी है, उहदा नाम हनुमंत सिंह है। हुण ये देखो, हनुमंत सिंह का क्योंकि रंग रलियां में पिया नहीं, इस करके चित्र चुत्र शब्दावली उहदे नाल नहीं जुड़ी, उहदा नाम रखता हनुमंत सिंह। हनुमंत कौन है? बलवान, जिहदे जिहड़ा बलशाली कोई नहीं हो सकता। राजे दी वाइफ चित्रमती स्वर्ग सिधार गई। राजा बड़ा उदास हो गया, कहन लगा, भाई मंत्रियों कहन लगा, बिल्कुल हूबहू ओहो जी सुंदर जिहड़ी है वो तुसी कोई कन्या लभो, नहीं मैं नहीं बच सकता। उन्होंने कहा कि उड़ीसा के राजे की कन्या की शक्ल उहदे नाल बिल्कुल मिलती जुलती है। राजे ने कहा कि उस राजे नूं संदेश भेजा उड़ीसा के राजे नूं कि मेरे नाल अपनी कन्या ब्याह दे। वो कहन लगा भी तू बुढ़ा, मेरी कन्या राजकुमारी जवान है, मैं तेरे नाल नहीं ब्याह सकता। तो राजे ने हनुमंत सिंह नूं भेजा कि इत्ते हमला करके जित के उस लड़की नूं लिआंदा जावे। हनुमंत सिंह जिहड़ा उहदा बच्चा है, उहदी कमांड च फौज जाती है। उस राजकुमारी उस राजे नूं हरा के राजकुमारी नूं पकड़ के ते राजा चित्रसैन दूजा ब्याह कर लैंदा है। दूजा ब्याह कर लैंदा है। हनुमंत सिंह उस तो बाद पढ़ना लिखना बोलना सब बंद कर दिंदा है। मतलब सोसाइटी ते इहदा असर किवें पै रहा है? वो राजा जिसनूं इस उम्र में ब्याह अपने बच्चे का करना चाहिए, वो अपना ब्याह कर रहा है। कहानी कितनी खूबसूरत कहानी बनाई है, कितना मैसेज ये निकलता है। उमर हनुमंत सिंह जिहड़ा फौज की कमांड कर सकता है, वो जवान है, तो ब्याह तो वह करना चाहिए। राजे नूं अपने ब्याह की चिंता पई है।
हनुमंत सिंह बोल चाल बंद कर दिंदा, क्योंकि जदों मतरेई मां घर विच आएगी बच्चों ते असर होएगा। ये मैसेज दिता है कि जे तुसी ऐसा बेजोड़ जा विआह भी करके ते आ जाओगे घर तो ये होवेगा कि बच्चों ते असर पवेगा। हनुमंत सिंह बोल चाल बंद कर दिंदा, कदे हसदा नहीं, कदे खुश नहीं हुंदा। राजा चित्रसैन राजकुमारी जिस नाल उन्हें विआह है नवीं राणी, उन्होंने कहता है कि ये बड़ा चुपचाप रहिंदा है, वो अपने उसनों महलों च लै जाती है। हुण वो उस राणी दे हाण दा है, उन्होंने एज बराबर बराबर है लगभग। वो चाहती है कि मेरे पति वांग ये व्यवहार करे। वो कहता कि नहीं, तू तो मेरी माता है। वो कहती कादी माँ, तेरा प्यो बुढ़ा है, मैं उन्होंने की करना। वो पूर्ण ते लूणा वाली कहानी वांग जदों वार वार उसनू हनुमंत सिंह नूं कहती है तो वो फिर वो कहता कि नहीं, ये काम मैं नहीं कर सकता, तू मेरी माता है, सत्कारयोग माता है। हुण राणी नूं बड़ी शर्म आई, उसने सोचा कि तो बड़ा काम खराब होगा। उसने किया कि अपने कपड़े पाड़ के ते राजे नूं कहन लगी कि तेरे पुत्र ने मेरी इज्जत लुटनी चाहिए। राजा जिहड़ा काम विच अन्ना है, उसनूं ये नहीं पता कि दोष राणी दा है कि दोष मेरे पुत्र दा है। वो मंत्रियों नूं कहंदा हनुमंत सिंह नूं मार दिओ, हनुमंत सिंह नूं कतल कर दिओ। मंत्री बड़े सियाने ने, वो कहते कि चलो कर देंगे, कुछ कहानियां साडे तो सुनो। दरबार दे विच उसनूं एक एक करके कहानियां सुनान लगते ने कि किस तरीके नाल बंदा काम विच पिया ते फिर की धोखा होया, किन्ना किन्ना कारणा करके सैक्स नाल रिलेटेड जिहड़े क्राइम ने उस दियां कितनियां सारियां कहानियां। किते कहानी ये दर्शाई कि बंदा बहुत धनी है, सिर्फ पैसे कमान च लग्या, स्त्री खराब हो जाती। क्यों? क्योंकि उसने तो पैसे का की करना है, वो शूमा वांग लिया के धन जमा करी जावे, घर खराब होएगा। ये मैसेज देते ने पैसे कमान वाल नहीं, परिवार वाल ध्यान दो, पैसे भी कमाओ, परिवार वाल भी ध्यान दो। किते स्त्री बहुत रूपमती है तो घर वाला बहुत बदसूरत है, पैसे के बल नाल या सत्ता के बल नाल, राज सत्ता के बल नाल उसने विआह कर लिया तो वो परिवार सुखी नहीं रह सकता। उत्थे भी दिखाया कि घर में खराबी शुरू हो गई। स्त्री धनवान होवे तो जो पुरुष है वो निर्धन होवे तो कहते ये भी बेजोड़ है। बेजोड़ विआह जिहड़े ने उन्हां दे करके सोसाइटी विच ये भैड़ियां चीज़ां, ये बीमारियां आउणगियां, ये संदेश दिता गया है चरित्रोपाख्यान विच, जिसदे लई स्त्री जिम्मेवार नहीं है। राजे चित्रसैन वर्गे पुरुष जिम्मेवार ने, दोष स्त्री का नहीं है। कलंक किहदे मत्थे ला दिता? स्त्री दे मत्थे। परंतु जिहड़ा पुरुष है जिसने स्त्री नूं बुराई विच धक्किया है, एक बाप उन निकम्मे जे मुंडे नाल अगर लड़की का विआह जबरदस्ती कर देवे तो उस लड़की का दोष थोड़ा है, वो तो पुरुष का दोष है। तो जे राजे चित्रसैन वांग ताकत के बल नाल किसी को जबरदस्ती खो के घर वसाना चाहे, वो तो भी कोई सुखी घर गृहस्थी जन्म नहीं लेगी। ये मैसेज है। एक पंक्ति है, होत तरुण के तरुणी बस, बिरद तरुणी बस होए। यह रीत सब जगत की जानत है सब कोई। बुढ़ा होएगा, घर जवान स्त्री लैवेगा तो फिर उसनूं ओदियां मनमानियां झलनियां पैणगियां। एक कहानी है, एक जोगी आया राजे नूं कहन लगा, राजपाल तो की लेना, इहनूं छड्ड, सब कुछ त्याग के समाधियां लगाया कर। राजा जिहड़ा है वो सन्यासी बाणा पहन के घर जान लगा
इस्त्री उसनूं समझाती है कि नहीं, ये तेनों गुमराह कर रहा है, तेरा राजा होने की जिहड़ी ड्यूटी है वो तेनों पूरी करनी चाहिए है, ये तेनों गुमराह कर रहा है। राजे नूं समत आ जाती है, वो वापस परत आउंदा है। पंक्ति है, जो नृप न्याय करे नहीं, बोलत झूठ बनाए, राज त्याग तपस्या करे, परे नरक में जाए। किड्डा वड्डा नीति शास्त्र है। तां कहते जिहड़ा राजा न्याय ना करे, जिहड़ा राजा झूठ बोले, तो जिहड़ा राजा अपना फर्ज पूरा ना करके भरथरी वांग घर त्याग देवे, कहते राज त्याग के वो स्वर्ग में नहीं जाएगा, वो नरक में जाएगा, क्योंकि जिहड़ा उसका फर्ज सी वो उसने पूरा नहीं किया है। एक कहानी अनूप कौर दे नाल संबंधित है। ਨੂਪ ਕੂਰੀ ਇਹਦਾ नाम, ये 21, 22 ਤੇ 23 ਤਿੰਨ ਚਰਿੱਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗਲਤੀ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਚਰਿੱਤਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਛਲ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਚਰਿੱਤਰ, ਅੱਗੇ ਦੂਜਾ ਛਲ, ਅੱਗੇ ਤੀਜਾ ਛਲ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਕਹਾਣੀਆਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤਿੰਨ ਪਾਰਟਸ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। कहानी ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ तो सारी ਉਥਾਨਕਾ ਇਹ बन जाती है कि ये श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी तो इलावा कोई होर नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कहानी आनंदपुर की है। आनंदपुर जिहड़ा है उन्होंने होर किते लिजाया नहीं जा सकता। वो कैलूर स्टेट में नैना देवी के थले सतलुज के कंढे ते दस्सिया है। राय कोई होर नहीं हो सकता, क्योंकि वो सिख ने बहुत सारे जिहड़े उहदे कोल आउंदे ने। उहदा पिता भी गद्दी ते रह चुका है और बड़ी प्रतापी गद्दी ते है। हुण जिहड़ी ਨੂਪ ਕੂਰੀ है, ये वार वार सुना के सिखां नूं गुमराह किया जाता है। ये तो गुरु महाराज ने जोड़ियां ने गंदियां गल्लां, गंदियां गल्लां नहीं जोड़ियां। गुरु समाज का किवें कल्याण करता है, गुरु काम में डिगे बंदे नूं पकड़ के किवें बाहर लिआंदा है, किवें वो जोगा सिंह वर्गे बंदे उत्थे पहरा देण लई, वेशवा का पहरेदार जे कोई कह देवे तो बड़ी गाल है ना, पर क्यों पहरा देना पैंदा है? क्योंकि अपने सिख नूं जिहड़ा उहनूं प्यारा है उहनूं कदे वो नरक अग्नि विच नहीं डिगण देवेगा। तो जे सिखनी नरक अग्नि में जा रही है तो गुरु उहनूं नहीं बचाए, ये किवें संभव हो सकता है? ਨੂਪ ਕੌਰੀ बड़ी धनवान इस्त्री है, तो वो महाराज जी का रूप उन्होंने बल देख के डोल जाती है। उन्होंने अपने घर बुलाती है कि तुम साढ़े घर आओ। क्यों? क्योंकि मैं मंत्र सिखावांगी। वो लोगों भी यह कहती सी, हुण लोग भुलेखे च ना रहन, इस करके वह मंत्र सिखाने वाला पाज भी उगाड़ना सी, जिवें छज्जिया दा उगाड़िया है। जोगी बन के कहती सी मंत्र सिखावांगी। गुरु जी ने कहा दस किहड़ा मंत्र। जदों वो गए गलबात हुई, उन्हें कहा इको ही मंत्र सीखिया तेरे कोलों कि बंदे नूं कदे काम में नहीं डिगना चाहिए। ये छज्जिया वाली कहानी सुना सुना के ते गुरु जी लिए अपमानजनक है, ये है वो है। गुरु जी तो कहते नहीं, मैं मंत्र तेरे तो ये सीख लिया है, होर कोई मंत्र तो देवी का मंत्र नहीं सीखना यार, इको मंत्र सीखिया है। बंदे नूं किसी भी हालत विच काम विच नहीं डिगना चाहिए। हुण ये उपदेश है कि कोई माड़ी गल है? अनूप कौर श्री गुरु जी नूं कहती है कि तुसी बहुत सुंदर हो, मेरे मन नूं बहुत अच्छे लगते हो। उन्हें कहा तू बहुत सुंदर है, बड़ी धनवान है, बड़ी सियाणी है, बड़ी चतुर है, पर तेरियां नज़रां जिहड़ियां ने मेरे दिल ते रता भी असर नहीं कर सकदियां। मेरे वास्ते तेरा हुसन गल घोटू बेर है। गल घोटू बेर क्या है? जेरा बेर खान नाल गल घुटिया जाएगा, वो बेर है तेरा हुसन, तेरा रूप, तू बड़ी सियाणी है। वो कहते ने कि देख मैं किस स्थान ते एक पूज्य गद्दी ते बैठा हाँ, ये गल्लां जो तू करनी है कोई शोभनीक ने? वो कहती जी कृष्ण भी तो पूजनीक सन, मतलब जेड़ा बंदा काम दे अंधेरे चला जाता है वो बड़ियां युक्तियां ने, बड़ियां दलीलां ने। वो कहती जी कृष्ण इन्नियां गोपियां रखियां सन कृष्ण जी ने, उन्होंने पूजा होंदी सी।
श्री गुरु साहब कहते हैं कि प्रथम छत्री के धाम दियो विधि जन्म हमारो। वेख साड़ा जन्म किहड़ी कुल च होया है, एक कुलीन कुल दे विच छतरी दे घर सानू परमेश्वर ने जन्म दिता है। ये कोई जातीय अभिमान नहीं, वो पवित्रता दस रहे हैं। बौर जगते बीच कियो कुल अधिक उजियारो। फिर साडी कुल ने संसार दे विच बड़ा प्रकाश किया है, चानन किया है। चौथे गुरु रामदास सच्चे पातशाह महाराज जी सोढ़ी सुल्तान तो लैके बौर सबन में बैठ आपको पूज कहाऊँ, हो रमो तुम्हारे साथ नीच कुल जन्मे पाऊँ। ये दसिया कि बंदा जेड़ा पर स्त्री ते डोलेगा वो की है, नीच बनेगा अगले जन्म च। इस जन्म च भी नीच है, अगे भी नीच होएगा। फिर वो कहते हैं सुधी जबते हम धरी बचन गुरदे हमारे। जदों दी मैनू समझ आई है ना, मैं जदों होश संभाली है, जदों मैं बालपने चो थोड़ा मैनू समझ सूझ आ गई है कुछ गल्लां दी, तो कहते बचन गुरदे हमारे, मेरे गुरु पिता ने मैनू ये उपदेश किया है। की किया है? पूत यह प्रण तोहे प्राण जब लग घट थारे। जदों तक श्वास ने इस शरीर दे विच ये प्रण कर। की प्रण कर? निज नारी के साथ नहीं तुम नित बढ़इयो, पर नारी की सेज पूल सुपने होना चाहिए। ये तो वो स्लोगन है जिहड़ा संसार नूं देना चाहिए सी कि आ जड़ियाँ समाज बीमार हो गया, एड्स होर कई बीमारियां, काम अपने आप च जिहड़ा एक्सैसिव काम है, अनकंट्रोल्ड काम है, अपने आप च समाज की सब तो वड्डी बीमारी है। तो सानू ये संदेश दुनिया को देना चाहिए सी कि ये स्लोगन बनाओ UN का एक हैल्दी मनुखता के निर्माण वास्ते। तो असी आप ही गालां कड्ढण लग पए, श्री गुरु साहब जी को भला बुरा कहना शुरू करता। ये केड़ी माड़ी गल है? कहते पर निज नारी के साथ नहीं तुम नित नित बढ़ाइयो। घरवाली नाल झगड़ा नहीं करना, अपनी घरवाली नाल बहुत प्रीत रखनी है, पर नारी की सेज पूल सुपने होना चाहिए। सुपने में भी विचार नहीं करना। अगे कहते हैं कितना कुछ गुनाह जिहड़ा है वो इस कुकर्म विचों निकलता है। पर नारी के भजे सहस बासव पग पाए। चंद्रमा की हालत देख, पर नारी दे रमन करके की हुई है। पर नारी के भेज चंद्र कलंक लगाए। इंद्र नूं कलंक लग गया, चंद्र नूं कलंक लग गया। पर नारी के हेत शीस 10 शीस गवायो। सीता नूं चुकन करके पराई स्त्री नूं 10 सिर जिहड़ा रावण सी उहदे 10 सिर कट्टे गए। हो पर नारी के हेत कटक कवरन को कायो। द्रौपदी नूं दरबार विच नंगा करन दे करके कौरवां दे सारियां सेनावां नष्ट हो गई, सब कटक जिहड़े ने वो खत्म हो गए। सो इस करके पर नारी से नहीं छुरी पैनी कर जानो। बड़ी तेज छुरी है पराई स्त्री दे। पर नारी के भजे काल व्याप्यो तन मानो। बाल हमारे पास, अजय गुरु जी बचपने च ने बचपन की गल दस रहे हैं। बाल हमारे पास देश देसन त्रिया आवें, मन बांछत बर मांग जान गुर शीस झुकावें। साढ़े सामने शीस झुका दिया ने। दूर दूर देशों तो स्त्रियां बीबियां आउंदियां ने। सिख है पुत्र त्रिया सुता। जड़ी सिख है पुत्र है, जड़ी स्त्री है वो सुता है, धी है। जान अपने चित धरिए, हो कहो सुंदर ते साथ गवन कैसे कर करिए। अपनी धी ना को कर्म कौन करेगा? सिखड़ियाँ तो मेरिया पुत्रियां ने। सो इस तरीके का उपदेश, इहो जिहा नीति शास्त्र, इहो जिहा धर्म शास्त्र ये गवा के होर कित्थों लभांगे? ये चीज़ां कित्थों, ये उपदेश कित्थों लभणगे? जदों काम की बात करनी है, बंदा सैक्स में क्यों पिया है, उसकी जिहड़ी अट्रैक्शन है, उसके विचों जिहड़ा उन्होंने एक चरम सुख मिलता है, उसका जिक्र, उसका वर्णन करना ये कोई गंदगी नहीं है। ये गंदगी नहीं है। एवें 2-4 लाइनां फड़ के कई जना ये गंदियां ने, ये गंदियां ने। ये इन्हां दा चंगा उपदेश ही पढ़ लो तुसीं। आ जिहड़ियां चीज़ां ने जिहड़ियां रूप कौर के संबंध विच ने,
ये कोई अवतारी पुरुष तो सिवा कोई धरती के उत्ते कोई दे सकता है उपदेश। सो ये अनमोल वचन अनमोल बातां जिहड़ियां ने वो श्री दसम ग्रंथ साहिब विच ने, चाहे चरित्रोपाख्यान, चाहे 24 अवतार, चाहे शस्त्र नाम माला। क्या कमाल की रचना है। दुनिया के साहित्य विच किते इन्ने शस्त्रां दे नाम इस तरीके नाल उन्हां दा वर्णन करना, कितने प्रकार के तीर ने, कितने प्रकार के नेजे ने, कितने प्रकार दीयां तलवारां ने। ये अपने आप में एक कैटालॉग ही एक शस्त्रां दी बहुत वड्डी है। तो ये ज्ञान दीयां चीज़ां, ये बंदे का चरित्र निर्माण करने वाली चीज़ां, ये पंथ संत नूं सिपाही बनाउण वाला जिहड़ा लक्ष्य देण वाला ग्रंथ है। इस दे संबंध विच सानूं एवें ही छोटे छोटे शंके लैके अपने मन दे इस ग्रंथ की ना निंदा करनी चाहिए, क्योंकि यदी निंदा आपां एक मन लईए 1% गुरु जी की रचना होवे ते जे इसनूं गंदी कवांगे तो गुरु नूं गाल नहीं है। ये तो सोच लेना चाहिए। तो ये सिख परंपरा तो, सिख जिहड़े ने ये परंपरा तो जिहड़ा है गुरु महाराज की रचना मनते आए ने। इस करके सानू इन्हां बाणियां नूं विचारना चाहिए, पढ़ना चाहिए, सन्मान देना चाहिए और अपने गुरु पिता दीयां खुशियां प्राप्त करनियां चाहिए ने। बहुत बहुत धन्यवाद तुहाडा। समा बहुत हो गया है। विचारा करदियां कई प्रकार दीयां गुस्ताखियां हो जांदियां ने, खास करके जदों कंट्रोवर्शियल विषय हुंदे ने। मेरे लिए तो कंट्रोवर्सी कोई है नहीं दसम ग्रंथ के संबंध में, क्योंकि मेरी मानता है कि इसका संपादन पहला भाई मनी सिंह ने किया, दूजा बाबा दीप सिंह ने किया। जो बाणियां साढ़े तक उपलब्ध ने बाबा दीप सिंह वाली बीड़ ते भाई मनी सिंह वाली बीड़ में सिर्फ इतना ही अंतर है कि उन्होंने हकायतां अंत में लिखियां ने ते बाबा दीप सिंह जी ने कवित अंत में लिखे ने। बाणी सारी इको है। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ 4 बीड़ा मुढ़लियां तैयार हुई, एक बीड़ दूजे के सामने नहीं है। तो 4 पुराने पुरुषों ने जिहड़े गुरु जी के संगी ने, जो उन्होंने मोहर लाती है सारियां श्री मुखवाक पातशाही 10वीं लिख दिता। तो अज साडा इहदे ते शंका करना ठीक नहीं है। ये सोचना कि पुराने सिख मूर्ख सन ते असीं बड़े सियाणे आ गए हैं, ये अपने आप में एक बहुत गलत बात है। पुरातन सिख जिहड़े लिखारी सन उन्होंने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी बहुत पढ़ी सी, उन्होंने दसम ग्रंथ की बाणी बहुत पढ़ी सी। उन्होंने गुरमत के विचार जितनी गंभीर तरीके नाल पता सी, सानू बिल्कुल सुपरफिशियल उपरली जानकारी है सानू। तो उस उपरली जानकारी के आधार से असी पंथ दीयां परंपरावां जिहड़ियां ने वो मिट्टी विच मिलण दा यतन करांगे। इहदे नाल पंथ का नुकसान होवेगा, चढ़दी कला नहीं होवेगी। बहुत धन्यवाद इत्थों की प्रबंधक कमेटी का, आप गुरु की संगत आ जिन्होंने बहुत कीमती वक्त दिता है, पेशेंस नाल मेरे विचार श्रवण कीते ने।